Hope you are all good. This is your science classes and we discussed chapter number 2, nutrition in animals. Previously we completed the topic tongue and teeth. So today we are going to start revision some other topic related to this chapter. So student, first of all, we can see that number and types of teeth in man. Number and types of teeth in man. Here we can write type of teeth, milk teeth and permanent teeth. Permanent teeth. So type of teeth, first one is the incisor, second canine, third premolar and fourth is molar. And total number of teeth. Milk teeth 8 and permanent teeth is 8, canine 4 and permanent teeth also 4, premolar number of teeth is 8 and here number of teeth is also 8, but molar milk teeth 0 and permanent teeth is 12. So total number of teeth 20 and here 32. So students, here we can see that number and types of teeth in man. मतलब मैन में हम लोग नंबर ऑफ टीथ देख सकते हैं. बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है तो उसमें 2 बार क्या होते हैं, टीथ आते हैं. पहला क्या है, 6 मंथ के बाद आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, और 6 ईयर्स के बाद जब मिल्क टीथ सारे ब्रेक हो जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आता है जो जिनका एज होता है 6 ईयर्स के बाद आना शुरू होते हैं और ये परमानेंट टीथ कहलाते हैं. एंड टाइप ऑफ टीथ, फर्स्ट इज इंसीजर, सेकेंड वन इज द कैनाइन, third one premolar and fourth one is the molar. Here we can see that the number of milk teeth 8, permanent teeth is 8, canine is 4, permanent teeth is 4, premolar 8 and permanent teeth is 8. So here we can see that number of permanent teeth, molar is 12, total number of permanent teeth is 32 and total number of milk teeth is 20. Next topic, amazing fact. Starfish opens the hard
like oysters after opening the cell the starfish pops out its stomach through its mouth. To eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. Starfish opens the hard shells of animals like oysters. Means starfish क्या करता है, वो oysters animals के जैसे अपने hard shell को open करता है. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. Means जैसे ही ओपन होगा उसके बाद स्टारफिश पॉप्स आउट, यानी कि धीरे से क्या करता है, वो बाहर निकालता है अपने स्टमक को और अपने माउथ की हेल्प से किसी भी सॉफ्ट एनिमल्स को इनटेक करता है. देन द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और फिर क्या होता है, वो स्टमक उसकी बॉडी में फिर से अंदर चला जाता है एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड डाइजेस्ट हो जाता है. द डायग्राम ऑफ starfish. Disc, rays, marginal spines, Next topic is tooth decay.
after eating food, especially sweets, chocolates, cold drink, and other sugars if mouth is not washed properly, then some left over food and sugar remain attached to teeth. The harmful bacteria break down the sugars and release acids. The acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. Which may lead to toothache and even loss of tooth. टूथ डिके मीन्स टूथ डिके धीरे धीरे हमारे दांतों का ब्रेक डाउन हो जाता है. ये कैसे होता है? आफ्टर ईटिंग फूड, स्पेशली स्वीट, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर सुगर्स. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फूड के खाने के बाद या फिर स्पेशली जब हम लोग स्वीट कंटेन करते हैं, चॉकलेट कंटेन करते हैं या फिर कोई ऐसे सुगर्स को कंटेन करते हैं जिसमें शुगर ऐड होता है या फिर कोल्ड ड्रिंक करते हैं, देन बेसिकली क्या है, अगर ये सब चीजों को लेने के बाद हम लोग अपने माउथ को प्रॉपरली वॉश नहीं करते हैं तो जो सम पार्ट्स होते हैं इन सब मटेरियल के वो हमारे दांतों में अटैच्ड हो जाते हैं, हमारे टीथ में अटैच्ड हो जाते हैं. द हार्मफुल बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर्स एंड रिलीज एसिड्स. और जो भी फूड के जो पार्ट है अगर हमारे टीथ में लगे होते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसे बैक्टीरिया ओरिजिन होता है और वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं. द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. और अगर हमारे दांतों में एसिड रिलीज होगा तो
धीरे धीरे क्या होता है, एसिड्स की वजह से हमारे दांतों में डैमेज होना शुरू हो जाता है, और यही हमारे दांतों का डैमेज होना ही क्या कहलाता है, टूथ डिके कहलाता है। एंड वी नो दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ teeth present in our mouth. First one is the incisor, canine, premolars and molars. Next topic, ORS. Full form is oral rehydration solution. It is prepared by dissolving a pinch of salt and sugar in boiled and cooled water it prevents dehydration of the body due to diarrhea and vomiting. ORS ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन क्या होते हैं? हम लोग ये देखते हैं जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन मीन्स डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तभी हम लोग क्या करते हैं, उसे रीहाइड्रेट करते हैं। ठीक है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। हाँ, इसमें क्या होता है, पिंच ऑफ यानी कि थोड़े अमाउंट में सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर होता है इन बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, उबले हुए एंड ठंडे वाटर में हम लोग इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू डायरिया एंड वोमिटिंग। जब भी हमें डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि ORS टाइम टू टाइम कंटेन करते रहिए, जिससे आपकी बॉडी का जो डिहाइड्रेशन है वो सही हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम डायरिया या वोमिटिंग जैसे डिजीज से सफर करते हैं तब हम लोग ये सोल्यूशन को इनटेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट टॉपिक, नोट पॉइंट इन दिस चैप्टर, ड्यूरिंग the act of swallowing of chewed food, a flap-like ball close
the passage of the windpipe, it guides the food into the food pipe. During the act of swallowing of chewed food, a flap-like valve closes the passage of the windpipe. It guides the food into the food pipe. मीन्स जैसे ही हम लोग ट्रीट करने के बाद सॉलो करते हैं फूड को, तो जो हमारा वॉल्व फ्लैप लाइक वॉल्व होता है वो क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद बेसिकली ये है कि पैसेज ऑफ द विंड पाइप इट गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और ये हमारे फूड पाइप में ही फूड एंटर करते हुए हमारे स्टमक में जाता है. ओके स्टूडेंट्स, so this chapter is completed now. In my next video we discuss some other chapter. Okay, thank you and have a nice day.